Now why am I saying that in the long run firms only report normal profit? First करो अभी ये situation है हमारी, right? This is our current situation. Firms in a perfectly competitive market are making economic profit. Price 5, cost 4.5. Now onward, I don't want you to focus on the numbers, just focus on the area which I am highlighting. ठीक है? अब होगा क्या, जो outsider firms हैं, they are going to see that firms in this market are making a lot of profit. Therefore, they are going to enter that market. उनकी एंट्री से क्या होगा? Remember, one of the determinants of supply curve was number of firms operating in that industry. When new firms enter the market, supply curve shifts right. तो supply curve आपका right shift करेगा, right? Supply curve is going to shift. Let's say हम यहाँ पे shift कर देते हैं, ठीक है? Supply curve will shift right. उससे क्या होगा? Now you have a new $5 equilibrium price is no longer applicable. Now you have a new equilibrium price. Let's say इसको $4 बोल देते हैं. Now you have a new equilibrium price. So your price line is basically, your missed it up. Your 4-in-1 line is going to shift down. इसको मुझे एक मिनट. Let me draw new graph now. ये आपका initial setting था. This was your economic profit, the green region, right? अब क्या होगा? Wait, please, just give me some time. अब क्या होगा? योर प्राइस लाइन, अब ये इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है आपका, इसको हटा दो, ठीक है? ना ही ये आपकी, इसको भी हटा दो, एवरेज कॉस्ट कर्व को, न्यू प्राइस लाइन को भी ओल्ड प्राइस लाइन को भी हटा दो, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट भी अब आपका बदल जाएगा. अब आपकी प्राइस लाइन क्या है? एट दिस पॉइंट, एट $4, आपकी प्राइस लाइन अब नीचे आई है, राइट? Your demand curve, your price line, this is now your new marginal revenue curve, your new demand curve. Now what is your new? Repeat the process again. अब आपका profit maximizing output क्या है? What is your profit maximizing output? MR intersects MC. Where is your MR intersecting? This is your profit maximizing output, right? Let's say it is, read it down to the vertical axis. अब ये 100 नहीं है, अब ये 100 से कम है, राइट? पहले ये 100 था, अब ये 100 से कम है. लेट्स से इट इज़ 90. अब आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? Extend a vertical line upward till it touches your ATC. Till it touches your ATC. Read it over to the vertical axis. आपकी प्राइस भी कम हो रही है और आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट भी कम हो रहा है. तो आपका न्यू लेवल ऑफ प्रॉफिट अब क्या है? अभी भी प्राइस इज़ ग्रेटर देन, ये आपका न्यू लेवल ऑफ प्रॉफिट है. Now you can see this is a smaller rectangle. तो when new firms enter the market, आपका जो profit का area था वो कम हो गया. Earlier it was this much, right? Now it is this much. अब as long as profit हो रहा है, firms will continue entering the industry, and new firms and supply curve will continue shifting left. एक point ऐसा आएगा, let me tell you, एक point ऐसा आएगा when your supply curve exactly, your price will exactly equal to ATC curve. यहाँ तो price was 5, ATC was 4.5, यहाँ पे price was 4, ATC was let's say 3.5, just an idea, ठीक है? ATC से कम है. एक point आएगा when अभी भी profit हो रहा है ना इस ग्राफ में. now new firms are going to enter the industry. अब नई firms industry में आएंगी, तो let's say supply curve will further shift right. अब मैं supply curve को और
राइट शिफ्ट कर रही हूँ. वाई? बिकॉज स्टिल फर्म्स आर मेकिंग प्रॉफिट, सो स्टिल न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड. अब सप्लाई कर्व को लेट्स सपोज मैंने कहाँ तक शिफ्ट करूँ, this is your supply curve, right? Now you have a new profit maximizing output, a new equilibrium price. अब ये तुम्हारी equilibrium price है, ठीक है. अब ये supply curve, this graph is no longer valid, ठीक है. इसको भी अब हम हटा देते हैं. अब क्या सिचुएशन हो गई है? What is the new situation now? एक मिनट, मेरा ग्राफ ही कहीं गायब हो गया है. इसमें एक कर्व मिसिंग है. दिस ATC कर्व इज मिसिंग. ATC continues to decrease till it touches and it decreases. अब देखो क्या हो रहा है. अब ये वाला प्रॉफिट इज़ नो लॉन्गर वैलिड. वाई? क्योंकि तुम्हारी प्राइस लाइन अब नीचे आ गई है. दिस ATC कर्व, दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट सब हटा दो. तुम्हारा प्राइस कितना हो गया है? यहाँ तक आ गया है. दिस इज़ योर न्यू प्राइस लाइन. इस प्राइस लाइन को अब नीचे करो. दिस इज़ योर न्यू प्राइस लाइन, राइट? न्यू फॉर्म्स एंटर द मार्केट, सप्लाई कर्व शिफ्टेड राइट, सप्लाई राइट शिफ्ट किया, सप्लाई आपकी गिरी. अब मुझे बताओ अब क्या हो रहा है. Is firm still reporting? Earlier it was reporting this much economic profit. New firms entered the market, price line नीचे आई, profit कम हो गया. अब क्या हुआ? What is your, remove this number. Let's say this is 3.5. What is your profit maximizing output now? Where MR and MC curve intersect, right? What is your price? Let's say 3.5. What is your ATC? ATC भी तुम्हारा 3.5 है. राइट? ATC भी तुम्हारा 3.5 है. एक्सटेंड अ वर्टिकल लाइन अपवर्ड फ्रॉम योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, रीड इट ओवर टू द वर्टिकल एक्सिस, यानी प्राइस इज इक्वल टू ATC. और यू कैन सी अब तुम्हारा जो योर इकोनॉमिक प्रॉफिट हैज़ बिकम ज़ीरो, राइट? रिकॉल दैट इक्वेशन. इकोनॉमिक प्रॉफिट किसके बराबर था? प्राइस माइनस ATC मल्टीप्लाइड बाय Y. अब प्राइस भी माइनस ATC ये ज़ीरो हो जाएगा. ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय Y, इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका ज़ीरो हो गया. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट हैपन्स इन द लॉन्ग रन. न्यू फर्म्स, अब नो न्यू फर्म इज़ गोइंग टू एंटर द मार्केट, क्योंकि अब इकोनॉमिक प्रॉफिट हो नहीं रहा. नाउ दिस मार्केट इज़ नो लॉन्गर अट्रैक्टिव, क्योंकि अब अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका ज़ीरो है. देर इज़ नो ग्रीन रीजन इन दिस ग्राफ नाउ, राइट? सो इफ़ आई आस्क यू टू प्लॉट नॉर्मल प्रॉफिट, हाउ आर यू गोइंग टू प्लॉट इट? You know that when firm is reporting normal profit, price is exactly equal to ATC. New firms keep on entering the market and they drive prices down until and unless it is equal to ATC. तो यही तुम्हारी प्राइस लाइन यही होगी. तुम्हारा MR MC कर्व तुम्हारा यही होगा, राइट? अब this time round, this is your profit maximizing output. This MR MC intersection point, this gives you your profit maximizing output. यही तुम्हारी प्राइस है और तुम्हारा ATC कर्व एग्जैक्टली यहीं से पास होगा. Will continue to and then it will. This is the graph for normal profit, as simple as that. ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी?
कि लॉन्ग रन में, लेट मी राइट इट डाउन, इज दिस क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। लॉन्ग रन का ग्राफ सबसे सिंपल है। लॉन्ग रन में प्रोडक्शन क्या होगी? इट विल ऑलवेज टेक प्लेस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर यूनिट। ये लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर यूनिट ही है ना, दिस इज द मिनिमम ATC। और इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट द लोएस्ट पॉसिबल ATC। ठीक है, ये हमें कैसे पता चल रहा है? बिकॉज हमें पता है प्रोडक्शन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट MR इक्वल्स टू MC है। परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट में MR प्राइस के बराबर होता है, तो आई कैन राइट इट एज P इज इक्वल्स टू MC। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में P इज इक्वल्स टू ATC। इफ़ P इज इक्वल्स टू MC, P इज इक्वल्स टू ATC, तो यानी कि यहाँ पर इस केस में MC इज इक्वल्स टू ATC, राइट? और हमने ऑलरेडी देखा है जब भी MC ATC के बराबर है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर ये तुम्हारा MC कर्व है, इफ़ दिस इज़ योर MC कर्व, तो तुम ATC कर्व कैसे प्लॉट करोगे? आई हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम्स, यू विल कंटिन्यू टू डिक्रीज इट टिल इट टचेज योर MC कर्व एंड देन इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। कंक्लूजन क्या है? दैट तुम्हारा जो MC कर्व है, इट इंटरसेक्ट्स द ATC कर्व एट इट्स मिनिमम ऑलवेज। MC, your marginal cost curve, always intersect ATC curve at its minimum। तो यानी कि MC इक्वल्स टू ATC जो हम लिखते हैं, चाहे मैं मिनिमम लिखूँ या ना लिखूँ, इट इज़ ऑलवेज इम्प्लाइड कि MC इज इक्वल्स टू मिनिमम ATC, राइट? बिकॉज MC ATC को इंटरसेक्ट ही वहाँ पे करता है जहाँ पे ATC मिनिमम होता है, तो इट इज़ इम्प्लिसिट कि MC इज़ इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ATC। दैट्स द रीज़न हमें कहते हैं लॉन्ग रन में प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट द लोएस्ट पॉसिबल एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ये जितना मैंने डिस्कशन किया था, न्यू फर्म्स एंटरिंग द मार्केट, सप्लाई कर्व शिफ्टिंग राइट, प्रॉफिट इतना था, फिर इतना हुआ, फिर बिल्कुल ज़ीरो हो गया, राइट? अल्टीमेटली मेरा जो ग्राफ मुझे बनाना था वो ये वाला बनाना था। दिस इज़ योर लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट ग्राफ। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है? इसी तरह आई एम नॉट शोइंग दिस नाउ, ये तो इकोनॉमिक प्रॉफिट फर्म्स वर मेकिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है दैट फर्म्स आर मेकिंग इकोनॉमिक लॉसेस, उसके केस में फर्म्स विल एग्जिट द इंडस्ट्री और सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट एंड इट विल कंटिन्यू शिफ्टिंग लेफ्ट टिल योर इकोनॉमिक लॉसेस विल बिकम ज़ीरो, टिल योर नॉर्मल प्रॉफिट, till you will reach normal profit. I am not teaching that case. इतना बस काफ़ी है that in the long run you are making zero economic profit. That's it. मैं economic losses को अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ।